Yeah, yeah, yeah. Yellow one. Hard. भाई मेरा आने दो आगे कौन नीचे चला गया रिचा जी तो आप क्लोज हो जाइए। रिचा मैम यहाँ पे रिचा मैम मैडम उधर भी लेफ्ट लेफ्ट सामने लेफ्ट रिचा मैम लेफ्ट रिचा जी सामने 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 मैम मैम सामने रिचा जी सामने मैडम रिचा जी रिचा मैम सामने सामने देखिए मैडम सामने वन मोर रिचा जी सामने डाउन सर So may I invite on stage the man who's behind all this. Give it up for the director, ladies and gentlemen. Ajay Bahal साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. It's a brave attempt जैसा मैंने कहा. So finally it's here. Congratulations. And जैसा मैंने कहा बहुत सारे emotions हैं. What do you have to say? Looking at all of them. Well, I'm very curious to know what the press is thinking, and I'm sure कि आपके पास बहुत सवाल होंगे और मेरे पास कुछ जवाब हैं जो मैं देना चाहता हूँ. So we can begin soon. हाँ हो जाए तो यहाँ पे we'll start with the question answers, but before that to invite on stage the man जो कि यहाँ पे मतलब ऐसा I don't know यार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया उनके ऊपर. Give it up for Akshay Khanna, ladies and gentlemen. Brilliant performer and one of the coolest actors of the industry. Akshay, what do you have to say? As I said, गुस्सा आ गया मुझे थोड़ा इस कैरेक्टर के ऊपर. Didn't you feel कि जो आपके फैंस हैं बड़े बड़े हार्डकोर फैंस हैं, they'll think यार क्यों why would you do a movie like this इस इतने ग्रे शेड्स के साथ? Yeah, I think people will enjoy the character. It's a character, as in the promo, it comes across as a little someone who's taking sides with somebody who's committed a crime. But that's the story. But as far as the character goes, I think people will enjoy it once they watch the film. But those eyes say a lot, हाँ? मतलब वो भी साथ बोल रही है और यहाँ पे भी दिख रहा है वो मुझे. Akshay Khanna, ladies and gentlemen, and now to invite on stage, she's one of the coolest actresses हमारी industry की. She's one of the most hardworking actresses. Give it up for Richa Chadda, ladies and gentlemen. And one more time, she's killed it over here. You've been vocal with your opinions, you know. आपने कभी ऐसा खुद को रोका नहीं है कुछ भी, जब आप बोलने पे आती हैं बोल डालती हैं. So कहीं ना कहीं ये कुछ personal भी था इसमें, या it was just a professional तरीका to, you know, vent it out, I don't know. I think the director very nicely tapped into that sense of justice I have, and I was able to channel it through this character. Rest, I think you should wait to watch the film. देखेंगे तब पता लगेगा. Also, ladies and gentlemen, please put your hands together for this. वो मैंने कहा ना hard hitting है, तो I think इनको भी पूरा credit जाता है. Meera Chopra, ladies and gentlemen, please give it up for her. Meera, we saw the thing पहले frame से आखिर तक. There was this thing कि we were getting goosebumps and हमको था यार हम इससे cope up नहीं कर पा रहे हैं. How did you manage, you know, to get out of it? Oh, to get out of it? पहले तो मुझे ये नहीं पता था how to get into it, because it was a very difficult character to portray, and I had a completely different vision to it. So I think I will give all credit to Ajay sir, because he exactly knew what I had to do, and I did exactly the same. बाहर आने के लिए, I would just say that when I finished the last schedule, I went home, or I was just quiet for like 4 or 5 days. I didn't know what had hit me. It was extremely emotional. It was extremely difficult. I couldn't get out of it. I had to make an effort. बहुत मुश्किल था.
आपके लिए मुश्किल था and बहुत ज़्यादा मुश्किल था. And then all I kept thinking was, I don't know how real rape victims, you know, they must be going through. Right. It's terrible. Right, it is. And जैसा मैंने कहा आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपके सामने जो थे, जिन पर ये सारे इल्जाम लग रहे थे, उनके लिए भी आसान नहीं होगा because he's such a cool person and बड़े अच्छे इंसान हैं. लेकिन यहाँ पे इसको पोर्ट्रे किया. Give it up for Rahul Bhatt, ladies and gentlemen. We've seen him इससे पहले भी, you know, portraying some of the most amazing characters on screen and living those characters. Sir, कैसे? देखिए कैरेक्टर ग्रे है इसलिए मैंने ग्रे टी शर्ट पहनी है आज. सो ऑफ कोर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की एक सच्चाई होती है और चाहे कितना भी बुरा हो उसमें कुछ एक चीज़ होती है जिसमें डीप जाने की ज़रूरत थी. तो मुझे लगता है रोहन खुराना की भी सच्चाई है जो आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगी. और ऐसे सब्जेक्ट को हैंडल करना उस सेंसिटिविटी के साथ आई थिंक एंटायर मार्क्स गोज टू हमारे डायरेक्टर अजय साहब. सो ही इज हैंडल्ड मी वेरी वेल. टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, आपके इस कैरेक्टर के अंदर कितने सारे इमोशंस चल रहे होंगे, उसको कंट्रोल कर पाना, फिर उसके साथ स्क्रीन पे उसको दिखाना. मैं रोज सेट पे आता था और सोचता था मैंने ये फिल्म क्यों की, मैं क्यों कर रहा हूँ ये. लेकिन कभी कभी अपने आप को गालियां भी देता था, अरे यार यही करना था तुझे अब. बट मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए ये बहुत ही, फिर आज जब मैं ये ट्रेलर देखता हूँ या लोग जब फिल्म देखकर मुझे फ़ोन करते हैं और आई थिंक आई बी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वन डे कि ये कैरेक्टर मैंने निभाया और इसको सच्चाई इसकी सामने लाई लोगों के. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन दैट वी मस्ट हैव. यस, बिल्कुल. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन बिहाइंड ऑल दिस, जिन्होंने इस सब को बैक किया है, गिव इट अप फॉर मिस्टर कुमार मंगत, लेडीज एंड जेंटलमैन. इससे पहले भी कई सारी फिल्में हैं. कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर और उनकी पूरी टीम की बात जरूर होती है. सर, इससे पहले दृश्यम, रेड, ओमकारा, यू हैव गिवन अस सो मेनी सुपर डुपर हिट्स, और वो फिल्में जो कि दिल पे छाप छोड़ गई. विद दिस सर एक बड़ा ब्रेव अटेम्प्ट है सर, क्या कहेंगे? काफ़ी सोचना पड़ा जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी. हम पूरी टीम कम से कम 3 महीने तक इसके बारे में डिस्कस करते रहे कि इसको कैसे जस्टिफाई करें. बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिसर्च की. अजय जी और हमने लॉयर से मिले, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हमने पूरी डिस्कस की, पूरा लॉ देखा, और पूरा समझने के बाद जब हमको लगा कि ये एकदम करेक्ट हो गया, तब हम इस पर आगे बढ़े. और इसमें पूरी स्टार का अक्षय जी, सब ने जो मिलके पूरा सपोर्ट किया इस फिल्म में, और जिस तरह से ये फिल्म शेप हुई है, मुझे लगता है पब्लिक इसमें एंजॉय करेगी. और जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं है लॉ के बारे में, इस फिल्म से पता चले. राइट, बहुत बहुत खूबसूरती के साथ वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट हुआ है, एंड आई एम श्योर यही है इस फिल्म की एक और खासियत. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस मूवी, सेक्शन 375, एंड या वील हैव अ क्विक फोटो ऑप, उसके बाद वील टेक द क्वेश्चंस. या जी, माइक ले लो. Good to go? जी. Thank you so much. जी, तो अब we'll take the questions. So and we start कहाँ से? Ladies first. Yeah, ladies first. जी. अरे इसको मैं क्यों देते हैं भाई? सवाल कितना लंबा करेंगे? मेरा सवाल आपसे है, इस विषय पे तो बहुत सी पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर अक्षय खन्ना, ऋचा जी इस तरह के उम्दा कलाकार हों तो उनके साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है. मुझे लगता है कि अक्षय जी बिना मतलब स्क्रिप्ट पे पूरा जब तक एब्सोल्युटली नहीं कर ले तब तक वो अपना रोल ओके नहीं करते हैं. तो इसमें जैसा कि मंगत साहब ने भी बताया कि आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, हाई कोर्ट और यहाँ गए थे, तो इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी भी कुछ ली गई है या फिर बिल्कुल जैसा आईपीसी है? और
मैम जो आईपीसी है वो खुद अपने आप में सेक्शन 375 है, और ये जो हादसा जो उस फिल्म में दिखाया गया वो अपने आप में इतना ड्रामेटिक है कि उसको ऊपर से कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की कोई हमको ज़रूरत लगी नहीं। अपने आप में ही इतना वो पेचीदा और इंटरेस्टिंग था दैट वी स्टक टू व्हाट द लॉ सेज, वी वेंट विद आवर रिसर्च, वी लाइक कुमार जी सेड वी मेट अ लॉट ऑफ लॉयर्स, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहुत ही अनबायस्ड तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाहते थे। जो ऋचा का कैरेक्टर है, शी इज फाइटिंग lawfully for what she think is right. Akshay ji's character is fighting lawfully for what he thinks is right. तो इसमें सिर्फ फालतू का आर्ग्यूमेंट ड्रामा बढ़ाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया है, बट बिकॉज लॉ को इतना हमने ध्यान से पढ़ा तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको बहुत फ्रेश लगेंगे, बहुत पेचीदा लगेंगे, जो नॉर्मली हम लॉ की फिल्मों में रेटोरिक ज़्यादा होता है, डायलॉग बाजी ज़्यादा होती है, बट इसमें मुद्दा है, हर एक आर्ग्यूमेंट में एक मुद्दा है, सो दैट वे वी स्टेट वेरी ट्रू। जी, हमें ये जो पेपर आप लोगों ने दिया, मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या जो 375 है उसमें ब्रूटल रेप और रेप दोनों का एक एब्सोल्युटली सजा अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर निर्भया का लें तो उसमें तो डेथ हो गई, वो गैंग रेप है और ब्रूटल है, तो जो इसमें अलग अलग सबसेक्शंस हैं, वो ये बताते हैं कि इफ इट इज मोर देन वन पर्सन तो क्या सजा है, इफ देयर इज फिजिकल असॉल्ट इन्वॉल्व, जैसे मारा गया निर्भया को या जो भी असॉल्ट उसके साथ जितना खतरनाक असॉल्ट हुआ, दर्दनाक असॉल्ट हुआ, तो सजा बढ़ती जाती है। इन द एंड डेथ पेनल्टी है, विच इज व्हाट वाज गिवन टू आई थिंक 4 पीपल हु वर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग निर्भया। तो जैसे जैसे आपके क्राइम का ग्रूसमनेस बढ़ती जाती है, सजा बढ़ती जाती है। ओके, थैंक यू। एक्सेप्ट फॉर द जुवेनाइल, एक हम सबको मालूम है कि एक लड़का 17 साल का था, जब तक केस चल रहा था वो 18 का हो गया, लेकिन फिर भी बिकॉज लॉ डिमांडेड दैट ही बी ट्राइड एज अ जुवेनाइल, उसको 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स दैट द फिल्म रेजेस। तो वाज जस्टिस डन और नॉट, बिकॉज लॉ कहता है कि इसको छोड़ दो, बट पूरी कंट्री चाहती थी कि इसको भी दूसरों के साथ फांसी दो, तो क्या जस्टिस हुआ, क्या लॉ फॉलो किया गया? लॉ फॉलो किया गया, बट वाज जस्टिस डन? सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। दिस इज़ हीना कुमावत फ्रॉम आवाज़.com। अभी हमने देखा और उन्होंने भी बात की कि इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं। हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और हमें लगता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इस बात की जानकारी या बताना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें, सेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको स्कूल एजुकेशन से ही, भले ही हायर स्टडीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों में भी अवेयरनेस हो कि क्या है ये सेक्शन? You want to take this? I mean, I think sex education अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, और I don't think anybody will disagree कि अब जब से डेटा फ्री हुआ है, you hear of these cases कि juveniles ने गैंग रेप करके वीडियो अपलोड कर दिया. Rape videos are very popular on porn sites. So in the absence of sex education, young boys, young girls will turn to pornography for sex education. That is such a skewed way of looking at the world. That is so wrong at a very base level. इस चीज़ को rectify करने के लिए it's all the more important to have a discussion, whether at home. अगर आप comfortable नहीं है अपने बच्चों, तो स्कूल में बात कीजिए. मेरे स्कूल में था sex education and it really helped. We had a great relationship between boys and girls. It was a co-ed school. और बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल लाइफ और अपब्रिंगिंग पे, तो ये ज़रूरी है. मुझे ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो लॉयर्स पढ़ते ही हैं. पर ये तो बहुत बेसिक बात है कि रेप या मॉलेस्ट या असॉल्ट करना गलत है और ये सब जानते हैं. पर बावजूद इसके जो लोग करते हैं उनके दिमाग में भी कुछ एक मतलब जैसे क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, एक प्रवृत्ति होती है. उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल. Also, not only in school, ma'am, I think even in the house, because there are a lot of cases where girls are being molested by their own relatives and people who are known to them. In fact, 98% of the cases are those जहाँ पे जो molester था या assault करने वाला था, victim का जानने वाला था. तो वो घर पे भी I think ये conversation बहुत ज़रूरी, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, कि they should know the signs, they should know how to report abuse, they should be able to recognize abuse and not fear कि relative है या कोई भी है जो.
इस फिल्म ये आने के स्क्रिप्ट आने से पहले आप लोग जानते थे कि सेक्शन 375 क्या है? फ्रैंकली मैं नहीं जानता था, तो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई रेड अबाउट इट एंड दैट्स हाउ माय एजुकेशन स्टार्टेड. आई डिड नॉट. ऋचा, यू, अक्षय, आप? एग्जैक्टली रेप का होता है 375, मर्डर का होता है ये नंबर, किसी और क्राइम का वो नहीं मालूम था, लेकिन रेप का लॉ है वो तो सब जानते ही हैं. आई थिंक इस साल अब क्या होगा ना, आर्टिकल 15, 420, 377, 375, ये सब अब सिनेमा एजुकेशन का काम करेगी, तो जो नहीं भी जानता होगा उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा. अच्छा, इस सेक्शन में मी टू भी आता है जो इतना बवाल मचा पिछले दिनों? We've not categorically, tried to target that movement because no movement should be, judged. Right now it's just, अभी इंडिया में वो अभी एक परचम पे नहीं पहुंची है, वो कहीं पहुंच रही है, तो हमने उसको नहीं छेड़ा है, ठीक है. The case might seem similar to you कि एक फिल्म डायरेक्टर है जिसने अपने एक जूनियर असिस्टेंट के साथ allegedly रेप किया है, and the crux of the story is finding out the truth, and truth, there's a famous saying, as usual, lies somewhere in the middle. So the film does not take any sides, neither the girls or the boys. It's completely unbiased view, and when both are right and you cannot decide the case, then what does law tell you to do and how do you tackle that? So that is the central question that the film asks. इतना मैं स्ट्रैटेजाइज नहीं करती, और मुझे नहीं लगता कोई भी इतना सोचता है. एक्चुअली अच्छी स्क्रिप्ट्स आर सो फ्यू एंड फार बिटवीन दैट व्हेन यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट आपको अपने आप एक लालच होता है. और जब मैंने, और एवरीबडी ऑन द स्टेज इज समबडी आई वांटेड टू वर्क विद एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई डीपली एडमायर. सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा, देखिए मेरे सारे कैरेक्टर काफ़ी अतरंगी होते हैं, कभी डॉन होते हैं, कभी गाली बकने वाले, कभी रुआसी. मतलब ये मुझे पहली बार लगा थोड़ा नॉर्मल है, मतलब सिर्फ एक लॉयर है, कोई पिम्प या ड्रग डीलर नहीं है या गाली देने वाली लड़की नहीं है. तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो. और जहाँ तक ये किरदार का सवाल है, मैं नहीं, कोई भी लड़की इसके साथ रिलेट करेगी. Why do you fight so aggressively for something you believe is wrong? Something you believe is right? क्योंकि as a woman you can resonate कि हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, we all have experiences of harassment. तो वो जो चीज़ है ना, वो एक एंगर और एक ज़्यादा जोश देती है. मेरा एक बार तो मेरा सेट पे ब्रेक डाउन भी हो गया था, क्योंकि पता नहीं डायलॉग बोलते बोलते एक चीज़ मुझे ऐसे छू गई कि मुझसे आगे बोला ही नहीं गया. देन अजय एंड दे आर सो नाइस, इन्होंने अर्ली लंच ब्रेक किया, अरे जाओ खाना खा लो. तो मैं रो धो के आराम से, व्हेन आई वाज रिलैक्स्ड आई केम बैक इनटू द सीन. बट इट वेरी चैलेंजिंग रोल. और मैं इसमें मुझे इस फिल्म में, इस सब्जेक्ट में और अपने किरदार में यकीन है. अजय सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन. जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमने देखा भी अभी जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे तो इसमें भी दूसरा पहलू हम लोगों ने जो देखा वो ये भी है कि कभी कभी इस सेक्शन को जो है वो ढाल भी महिला कभी कभी बना लेती हैं, जो सही नहीं होता. उस एंगल को भी सर कितना आपने इस फिल्म में दिखाया है, और क्या उसका सुझाव क्या है? एक सवाल ये है, और दूसरा फिर मैं जी वो भी अभी पूछ लीजिए. दूसरा सर थोड़ा फिल्म से अलग है, तो इसलिए पहले देखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ लिटिगेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन आदमी एग्जैक्टली सच बोल रहा है, कौन आदमी एग्जैक्टली गलत बोल रहा है. लाइक ये वेरी राइटली सेड कि सच कभी पूरा सफ़ेद नहीं होता और झूठ कभी पूरा काला नहीं होता. शायद इसीलिए लॉयर्स काला और सफ़ेद दोनों पहनते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको भी थोड़ा पैंतरे. मुझे लगता है हालात है, वो हवा का रुख बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे.
मुझे ऐसा लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट अपने दिल से गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, पोइट्री लिखते हैं। हम कहाँ किसी से दंगे फसाद की बात करते हैं। आर्टिस्ट तो सिर्फ प्यार की बात करते हैं। अक्षय सर, आप भी अगर रिएक्शन दें इस पर तो। ये तो पॉलिटिक्स है, हम इस पे ऊपर क्या हम बोले। So I think that's saying a lot. हाय रिचा, हाय अक्षय, दिस इज रवि मैं फ्रॉम। एक्टर्स से पूछना चाहूँगी कि ये जो बॉलीवुड में मी टू का जो ये चला हुआ है, तो काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है जो जिन पे अक्यूज्ड है मी टू के, उनके साथ काम नहीं कर रही है। जैसे कि हाल ही में दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया लव रंजन के साथ फिल्म करने से। तो आप लोग का इस पे क्या टेक है, और आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि क्या आप कंफर्टेबल होंगे इनके साथ काम करने के लिए या नहीं? हर केस अलग अलग होता है, एवरी केस इज़ डिफरेंट। केस के ऊपर जाना चाहिए। ज़्यादातर जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ को स्टार, तो काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को मतलब दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को समझते हैं। तो यू अंडरस्टैंड अ पर्सन, यू अंडरस्टैंड कि ये बंदा या ये औरत इस चीज़ का केपेबल है कि नहीं है। तो आई सपोज एवरी पर्सन विल टेक देयर ओन डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। And one thing I want to say to this, like, just imagine, hypothetically speaking, the organization where you work for, anybody else works for, one of the sort of senior guys is accused of a Me Too. All right, so would you stop working for that organization? It's your job, right? Would you stop working? I put the question to you. So it's very difficult, right? You would not. So. सर पर मैं मतलब मीडिया भी जाती है ना मी टू अक्यूज्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मैं माइक उस तरफ भी टर्न करूं तो आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। बात ये है कि जब तक लीगली गिल्टी इनोसेंट प्रूव नहीं होता, मीडिया में ट्रायल चलाना, ट्विटर पे ट्रायल चलाना अलग बात है। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ एक या दो एलिगेशंस है, उनकी बात नहीं करी जहाँ 19-20 लोग सामने आए हैं। दैट द वॉल्यूम ऑफ द पीपल हु आर सर्वाइवर्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। पर ये एक सोशल प्रॉब्लम है, हम सबको इसे एड्रेस करना होगा। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन लिंच मॉब बना के किसी का करियर ठप कराना, अगर किसी पे एलिगेशन लगी है, आप जितना भी चाहो वो मुरझा के मर तो नहीं जाएगा ना, वो जिंदा रहेगा। उस चीज़ को कैसे एड्रेस करें, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जनरल रूल नहीं हो सकता। I think I would agree to her. I would not judge anybody just because he's been accused. Court of law है हमारा जज करने के लिए who's right and who's wrong. तो जब वो accused को बोलेंगे yeah he's guilty, then we all have something to say or talk about. But what is happening right now, we don't know what is true and what's not. The entire Twitter trolling which happens on accused and people putting anonymous posts, it's just not right. And people are suffering. I mean, they are really suffering in their careers. So I think that's wrong. I think we have court to decide this, and we should just leave it to them. We should trust our courts, our justice system. अक्षय एंड रिचा, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। आप दोनों से सवाल है कि आज भी जब रेप विक्टिम को न्याय दिलाने की बात होती है तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वही उसे सपोर्ट नहीं करता है। जिस तरह से लीगल सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, और दूसरा पहलू ये भी है कि लड़कियों को ही स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अगर लड़की सामने आती है, पुलिस स्टेशन जाती है, अदालत जाती है, तो हमारा समाज जिस तरह का समाज है, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग भी ऐसी है कि हम लड़कियों को ही एहसास कराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये जो सोच है लोगों की आज भी नहीं बदली है, उसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, ठीक है। रेप भी आदमी करता है। अभी तक मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा कि औरत ने रेप कर दिया हो। तो एक सोशल अरेंजमेंट है,
नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें विक्टिम शेमिंग ये फ्रेज ही इसलिए आया है क्योंकि लोग लड़की से पूछते हैं तुम क्या कर रही थी, तुमने क्या पहना था, तुमने डिड यू आस्क फॉर इट. एंड वी हैव टू चेंज आवर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस क्राइम विच कैरी सो मच सोशल स्टिग्मा. हम रेप के लिए ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि इसकी इज्जत लूट ली, इसकी नाक कट गई. इज्जत तो उसकी लुटती है कि जिसने अपना आपा खोया है, जिसने हु लॉस्ट कंट्रोल. वी ऑल हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड. जिस दिन ये एटीट्यूड चेंज होगा ना तो रेप विक्टिम का चेहरा नहीं ब्लर होगा, उसके साथ जो आरोपी है उसका चेहरा ब्लर होगा. दैट इज द बिग डिफरेंस. वी ऑल हैव टू मेक दिस चेंज. वेल सेड. अक्षय, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? I think she said it much better than I could have said it. थैंक यू. एक सवाल, एक दीवानगी ज़्यादातर थ्रिलर थी. आई वॉज प्लेइंग अ लॉयर बट द फिल्म वॉज मोर ऑफ अ थ्रिलर जॉनर. दिस इज़ अ प्रॉपर कोर्टरूम ड्रामा. सो ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा क्योंकि दुनिया ही अलग है. और जब हम बाहर से उसे देखते हैं तो कुछ और मतलब नज़र आता है, और जब आप खुद उस दुनिया में एज एन एक्टर भी आप जब घुसते हैं तो you just learn a lot and you experience a lot of emotions and thoughts and ideas that maybe you would have not previously. But having said that, the story is so not only topical but relevant no matter which year you're living in, because it's something that's happening all the time. And how these kind of cases are looked upon, whether you are part of the defense or you're part of the prosecution, or whether you are a judge, or whether you are a normal person in the public viewing it on TV or reading in the papers. So all the angles have been taken into consideration in the writing. So it gives you, the film gives you a holistic view of one particular case. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई थिंक फॉर द ऑडियंस एंड स्पेशली फॉर अस एक्टर्स इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Richa, here. You're behind. I'll come to you. हाँ, इसका वैसे हमारी फिल्म से कोई लेना देना है नहीं. मैं अपने आप को इन दोनों मुद्दों पे ज़्यादा एजुकेट करके आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है. कोई भी चीज़ जो इमिजिएटली होती है उस पर ऐसे फास्ट फूड की तरह हम रिप्लाई नहीं कर सकते. उसका रैमिफिकेशंस क्या है, अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा उस पर. मतलब मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी नीयत से की गई हैं, और मैं यही मानना चाहूँगी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का कुछ इन्वॉल्व नहीं है. और मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहूँगी. इससे ज़्यादा हम लाचार नागरिक कर क्या सकते हैं. ठीक है. पाठक जी, आप एक सवाल आप दोनों से. रिचा, वी नो यू एज अ वेरी वोकल पर्सन, यू ऑलवेज शेयर योर व्यूज. तो आपका ये इस फिल्म में आपका जो ये जो कैरेक्टर है, आपके कितने खुद के इनपुट्स थे या नहीं थे, और यू हैड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ, यू नो, लाइक द लैंग्वेज ऑफ लॉ? देर इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लॉ. देर इज़ जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टोरी इज़ अ टेक्निकल टर्म इन लॉ. Theory is a technical term in law. Tainted evidence is a technical term in law. So these things Ajay had to educate me with, and I was really happy to learn that, you know, so much is going on in a courtroom. मतलब तर्क वितर्क की बात. I can resonate with this character personally because I feel like I have a sense of justice, but all the technical assistance, this guy. और रिसेंटली, यू नो, वी सॉ नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर्स अनाउंस हुए थे परसों. लॉट ऑफ गुड फिल्म्स हैव गॉट अवार्ड्स. काफ़ी अच्छी फिल्म्स के विद गुड सब्जेक्ट्स हैव बीन अप्रिशिएटेड. हाउ इम्पोर्टेंट इज द एनकरेजमेंट बाय अ प्लेटफॉर्म लाइक नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर फिल्म्स लाइक परहैप्स इन आर्टिकल 15 और दिस पर्टिकुलर फिल्म? यू नो, जो एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए ऐसे फिल्म मेकर्स को, वो कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे? एक ऑडियंस के इनकरेजमेंट से बड़ा इनकरेजमेंट कोई नहीं होता.
the audience encourage कर दे, we'll be very happy. अक्षय, आप कुछ कहना चाहेंगे, you know, on this? He said it correctly, but when your own country gives you an award, I think that's the ultimate, you know, award to get. पाठक जी, आपने और अजय जी ने बहुत अच्छी कहानी लेकर आ रहे हैं. इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रेप के बहाने आप कोई सनसनी फैलाना चाहते हो. बहुत अच्छे से डील किया है, जैसा हमने इसमें देखा है. लेकिन इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, पर्टिकुलर लड़की का कैरेक्टर, उसकी जाति का जिक्र किया गया है. तो क्या वो कुछ मुद्दा, मतलब वो कुछ निचली जाति है या जो भी है, उनके वकील ने जिक्र किया कोर्ट में. ओके. How she's presenting जिक्र the करने का case. कारण भी है. ओके ओके ओके. Rahul, straight here, yeah. Rahul, a word about your character and what were the kind of emotions that went through while shooting for it? I think बहुत ही difficult character है और in fact one of the jail scenes even I broke down and मुझे लगता है रिचा उस तरफ break down होगी और मैं इस तरफ. But yeah, it's a very difficult character to portray for an actor because after all, you know, nobody wants to be associated even दूर से with the stigma like that. But मुझे लगता है हर कहानी के किरदार होते हैं, विलन होते हैं, हीरो होते हैं, ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं और एक्टर्स का काम यही है कि अपना काम धर्म से निभाए और जितनी अच्छी तरीके से वो उस कैरेक्टर का पोर्ट्रे कर सकते हैं वो करें और मुझे लगता है मैंने वही किया. Rahul has portrayed that character with utmost dignity and belief. So I'm very thankful to him for that. I'm really very thankful. Thank you. Rahul, you're also from Jammu and Kashmir. How is your family out there? If you have any family out there, have you been able to establish देखिए contact? मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमारी कोई फैमिली वहाँ नहीं रहती. अब हम बहुत 1989-90 से ही छोड़ के चले आए और जब लोग छोड़ते हैं तो कुछ कट्टरपंथियों की वजह से छोड़ते हैं, लेकिन कट्टरपंथी सिर्फ मुसलमान नहीं होते, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं. हर धर्म में कट्टरपंथी हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं. तो कश्मीर में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कम लोग बहुत बुरे होंगे शायद. तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे कोई अब अगर किसी कट्टरपंथी का बच्चा भी यहाँ खड़ा हो और एक बुलेट वहाँ से आए तो मैं अपने आप को उसके सामने खड़ा कर दूंगा. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम एंड आई ओनली प्रे टू गॉड कि ये जल्दी से खत्म हो जाए मामला और सब ठीक हो जाए पहले की तरह. Also, one second, Nitin. You know, there is a scene in the trailer where I think Meera's character is, you know, while interrogated by the police officer, he asks whether you are habituated to sexual intercourse or not. There is something called as the two-finger test, which although banned by the Supreme Court is still, you know, implemented by doctors illegally. Have you touched upon the same and what do you guys think about it? Two-finger test? The two-finger test, as you rightly said, has been banned. And if the medical examination is happening, he's a doctor who's asking questions, not a cop. So the medical examiner in big cities, they can't even dare to do that anymore. Okay, the doctor will land up in jail if he does that. But still, the process when a victim is asked about the details is called the case history, assault history. तो जब assault history से उससे पूछा जाता है कि exactly क्या हुआ, एक gruesome detail में पूछा जाता है. It's very invasive, almost like being raped again. But what you say there is very important because अगर आपकी body में वो proof नहीं मिला, आपके DNA swabs में नहीं मिला या fingernail scrapings में नहीं मिला, तो the doctor will write that the report will go in the favor of the accused. So इसीलिए वो इतना डिटेल में पूछते हैं ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए. और ऐसे सवाल हैं फिल्म में, देखिए तो बहुत छोटा सा आपने एक पार्ट देखा है सीन का, जब आप सवाल वो डॉक्टर पूछेगा, it's just shocking and मैं आपको बता नहीं सकता, like after getting raped you don't want to go through that interrogation. After getting raped, that's the last thing a woman needs, but it is done, it is important. I want to just ask, like, through this film, are you all giving any message which could help the society? I mean, is there anything, is it like empowering or anything of? Definitely. I think the way this film dissects the law, a lot of people do not know what actually constitutes rape.
Okay, I'll just give you a small example. Like the boy and a girl are going around, and the boy is pressurizing her to have sex with her. She refuses, says, "I'm not ready." Boy says, "Okay, fine, then I want to break up." You know, and in that pressure, she agrees to sleep with him. Even that is rape. A lot of people do not know that. You know, अगर हम इस पे action लेने लगेंगे तो 90% boyfriends जेल में होंगे. Can others also throw light on this, like Richa, Akshay, and Rahul, and Meera, on this particular point? Like, does it help the society? Is there I any think message? more than educating the audience, एक definite फिर उनको टैक्स भी देते हैं. तो मुझे लगता है कि हम बॉलीवुड को इतना बड़ा रोल मॉडल ना बनाएं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं. मतलब हम बेचारे एक्टर हैं जो ट्रेलर लॉन्च पे आके आपके सामने आए सवालों का जवाब देने. तो अभी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बाढ़, हम नहीं चाहते कि बाढ़ आए, पर हम क्या करें. अब आ रही है बाढ़, हर जगह आ रही है. पिछले साल केरला में, इस साल महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, हर जगह आ रही है बाढ़. पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है. कहीं 12 बिलियन मेट्रिक टन आइस मेल्ट होगी तो पूरी दुनिया में सी लेवल राइज करेगा. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. जी आखिरी सवाल. Thank you so आप much. पूछ रहे थे? हाँ. तुम्हें किसने बोला ऐसे फ्री में कर लेते? हाँ? मैं एक्चुअली जुड़ा इस फिल्म के साथ क्योंकि मुझे अजय की जो राइटिंग थी, मुझे बहुत कुछ ऐसी राइटिंग थी जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था. और जिस मैच्योरिटी से, जिस डेप्थ में जाके अपना पूरा लाइफ का और सोल का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अजय ने इस पिक्चर को लिखा है. और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ. एंड जब आप पिक्चर देखेंगे तो आई एम श्योर आप पहचान पाएंगे कि जिस शख्स ने ये पिक्चर लिखी है, डायरेक्ट की है, बहुत ही मैच्योरिटी और कुछ multiply nuanced or very fresh writing, whether it's the dialogue, whether it's the relationships between the characters, whether it's his take on this particular law, his take on the judicial system. On many levels, the writing has been extremely high, and that is what really attracted me to the subject. Thank you so much, ladies and gentlemen. Just one question, जी. not about the film, just a fun question, Akshay, for you, because Dil Chahta Hai completed 18 years and it was trending all over Twitter recently. So I just want to know from you, like if you look back, like what do you think the three characters would be today after 18 years? Where would they be headed? Just a fun question for you, as a Dil Chahta Hai fan. In fact, I always told Farhan, I said, wait till all of us are 50 plus and then make Dil Chahta Hai 2. So then it'll be fun. If you make it after 10 years, 15 years, no fun. So I think now Amir is 50 plus. Saif will be there soon. I have to take a little more time. Then we'll see. Thank you so much, ladies and gentlemen. And now for the final photo op, I'd like to invite some very important people on stage. Mr. Aditya Choksi, who's the co-producer, ladies and gentlemen. And also Mr. Murli, यहाँ पे हमारे साथ हैं, the associate producer, ladies and gentlemen. So it's time for the final photo op. The cast, please. Yeah.
solo will